Hello students, here is the lesson number 3, unit 3, the little girl, and these are the glossaries. Terrifying, fearful, slutter, stammer, speak means जो हकला के बोलता हो, speak haltingly means अटक अटक के बोलता हो, wretched, unhappy, cheerless means wretched जो है वो unhappy है या cheerless है, yawn, open the mouth with deep inhalation मीन्स अपना माउथ ओपन करना मीन्स डीप ब्रीथ करते हुए, ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्नोरिंग, ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लिप विथ हॉर्स और हार्श साउंड मीन्स ब्रीथ करना जब आप सो रहे हो तब आप कैसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हो, हार्श साउंड से जब ब्रीथ करते हो सोते टाइम, ग्रेवली सीरियसली, लेबरसली विथ टॉलसम एफर्ट, scraps waste material, stuff filled with or screamed, shrieked or screeched means चिल्लाना, pacing, walking, strolling, fetch, go, get and bring, fetch means जाओ और जाकर लेकर आओ, damned, detestable, fateful, shadowed, here dark, barely lighted means कम लाइट वाला मीन्स डार्क, wrapped, covered, rogged, swayed, sobbed, shed tears, cried, shed tears, cried means hanky, handkerchief, fence, barrier और barbed wire means गुथी हुई जो वायर होती है ना वो, tag, children's game of catching one another, nightmare, a bad frightful dream, crept, moved slowly, butcher, murderer, dreadful, terrible, frightful, shivering, here trembling with fear, snuggled, pressed close together, stirred, got emotional, moved. Here phrases and idioms, a figure to be feared, a person to be feared, take off, remove from feet, slip down, slide downward, give up, leave, abandon, stop doing something, on the brink of suicide, about to commit suicide, stretched out, lay down comfortably, tucked up, covered up nicely in bed, to look, search, find, wandered into, went into by chance, hue and cry, loud angry protest, dragged down, caused to trail along the floor, to and fro, here and there, this instant, right now, immediately. So, now today we are going to start our lesson number 3, the little girl. So, first shall I tell you what is the story about? Catherine Mansfield Murray Beauchamp, 14th October of 1888 and died in 9 January 1923, was a prominent modernist short story writer from New Zealand. She is widely known by her pen name Catherine Mansfield. Kezia's father, this is the story about, Kezia's father was a busy man. He was so much lost in his business that he had no time for his family. Kezia's के जो फादर थे वो बहुत ही बिजी मैन थे, वो बिल्कुल अपना टाइम सारा अपना बिजनेस में चला जाता था उनका, और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उनकी फैमिली के लिए. Being an over disciplined man, he was strict with Kezia as well. और वो बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन मैन थे, इसलिए वो केजिया के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे. He never had those soft feelings for his little daughter, nor did he pet her for a while. Means उनके मन में कोई सॉफ्ट फीलिंग्स नहीं थी अपनी डॉटर के लिए और ना ही अपने पेट के लिए. फॉर अ सेकेंड और फॉर अ वाइल, फॉर अ टाइम, ऑल ही डिड वॉज गिविंग हर परफंक्टरी किस रेदर देन लविंग वन. मीन्स किसी ने कहा हो या आप आपके बच्चों से प्यार करें तब वो अपने मन से कभी ऐसा नहीं करते थे. हिज प्रेजेंस एट होम फ्राइटन केजिया
and she felt relieved when he was gone. जब वो घर पर रहते थे तब केजिया हमेशा डरी हुई रहती थी उनसे, बट जब वो चले जाते थे तो ही वो रिलीव फील करती थी और वो फ्री फील करती थी. केजिया वॉज एबल टू स्पीक विदाउट स्टटरिंग, बट इन हर फादर्स प्रेजेंस शी स्टटर्ड एंड हैड ऑल दो स्पीच इन प्रॉब्लम्स. मीन्स केजिया जो थी ऐसे तो बहुत अच्छे से बोलती थी, वो फ्लुएंसी में बोलती थी, बट जैसे ही उसके फादर की प्रेजेंस में होते थे तो वो मीन्स स्टैमर्ड करती थी, मीन्स ऐसे रुक रुक के बोलती थी, स्टैमरिंग करती थी और उसकी स्पीच में प्रॉब्लम होती थी. इन एन अटेम्प्ट टू स्पीक इन नॉर्मली हर फॉर्मिडेबल फादर्स प्रेजेंस, और जब बोलने की बारी आती थी तो उसके फादर की प्रेजेंस में वो नहीं बोला थी. शी स्टार्टर्ड, मतलब वो स्टैमरिंग करती थी. इन स्पाइट ऑफ ऑल केजिया's फादर हैड अ लविंग हार्ट, और केजिया के फादर का एक लविंग हार्ट भी होता है, मीन्स वो प्यार से भी रखते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट स्ट्रिक्ट है. ही वॉज ओवर डिसिप्लिन मैन. द मैकडोनल्ड्स who lived next door made an exuberant lively playful family, और उनके जस्ट जो पास में ही डोर मेड में exuberant lively playful family थी मैकडोनल्ड्स. Looking through the vegetable garden wall, Kezia saw the 5 children playing with their father. और वहीं एक गार्डन था, वेजिटेबल गार्डन था. केजिया वहाँ जाके देखती है कि बहुत सारे बच्चे, 5 बच्चे जो है वो अपने पापा के साथ खेल रहे हैं. टर्निंग अ हॉर्स एट हिम एंड द फादर टिकलिंग द चिल्ड्रन, और उनके आसपास बच्चे ऐसे उसके पापा के जो बच्चे खेल रहे थे वो उनके पापा के ऊपर चढ़ के ऐसे खेल रहे थे और वो बच्चों के साथ भी घुल मिल के खेल रहे थे. When compared with her scary father who never played with her, वो कंपेयर कर रही थी कि मेरे पापा तो कभी मेरे साथ ऐसे खेले ही नहीं हैं. Kezia saw the height of love between father and children next door and she loved the McDonald family. और केजिया ने देखा कि उन लोगों के बीच में प्यार कितना है, वो फैमिली के बीच में प्यार कितना है, बच्चों के बीच में प्यार कितना है, और बच्चों के साथ उनके पापा के लिए भी उनके मन में कितनी रिस्पेक्ट है, कितना लव है. एंड चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर शी लव द मैकडोनल्ड फैमिली, और वो उसी तरह से मैकडोनल्ड फैमिली को बहुत ही पसंद करती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. दिस इज पेज नंबर 32. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Means एक छोटी सी लड़की है जो हमेशा डरी हुई रहती है और हमेशा अवॉइड करती है. अवॉइडेड मीन्स अवॉइड करते हैं उसके डैडी उसे. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू अ रूम एंड गेव हर कैजुअल किस, और हर सुबह जब अपने काम पर जाने से पहले उसके डैडी जो थे उसे एक सिंपल सा कैजुअल सा फोरहेड पर किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसका रिस्पॉन्स वो ऐसा होता था कि वो अपने डैडी को गुड बाय कहती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. अब उसे तब रिलीफ फील होता था जब वो जो उनका कैरियज था, जो गाड़ी थी उनकी, और वो बहुत दूर रोड तक पहुंच जाती तब. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. जब शाम को वो जब घर आते थे तब स्टेयरकेस के पास खड़ी होके उनकी जो बेटी जो थी वो हमेशा ऐसे उनकी लाउड वॉइस सुनती थी हॉल में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजेंट द पेपर कम येट, मेरा ड्राइंग रूम में मेरी टी लेकर आओ, मेरी चाय लेकर आओ, और अभी तक पेपर नहीं आया है. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और वो ऐसे बोलते थे कि जाओ जाके मेरा पेपर लेके आओ और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स वुड. केजिया की मदर ऐसा बोलती थी कि अगर तुम गुड गर्ल हो तो तुम नीचे आओ और अपने डैडी के शूज उतारो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door.